হ্যালো স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ইংলিশ এডুকেশন উইথ আন্ডারস্ট্যান্ডিং। আমি মলয় স্যার। আমার আগের ভিডিওগুলোয় আমি তোমাদের প্রেজেন্ট টেন্স, পাস্ট টেন্স সব ডিটেলসে এক্সাম্পল দিয়ে বুঝিয়েছি। আজকে আমি তোমাদের বোঝাতে চলেছি ফিউচার টেন্স। ওকে, আর ফিউচার টেন্সের ব্যাপারে তোমাদের একটা কথা বলতে চাই যে ইন জেনারেল আমরা যেটা বুঝি যে ফিউচার টেন্স যখন আমরা বলি বা ব্যবহার করি তখন আমরা জানি শ্যাল আর উইল ছাড়া ফিউচার টেন্স হয় না, রাইট? এটা অনেকে আমরা হয়তো মনে করি। আজকে তোমাদের আমি বোঝাবো যে ফিউচার টেন্সের যে চারটে ভাগ আছে সেই চারটে ভাগ ছাড়াও আর চারটে কি কি আছে যেটা আমরা ব্যবহার করে ভবিষ্যৎকালটা আমরা বোঝাই, সেটাই আমি আজকে তোমাদের বোঝাতে চলেছি। मैं आज आप लोगों को ये सिखाने जा रहा हूं कि फ्यूचर जब हम लोग बोलते हैं तो हम लोग को दिमाग में यही आता है कि शैल और विल देके हम लोग फ्यूचर टेंस यूज करते हैं, लेकिन फ्यूचर टेंस का जो चार भाग है ये छोड़ के भी और चार है जिसके द्वारा हम फ्यूचर समझते हैं या यूज करते हैं। यही आज हम आप लोगों को ये समझाने जा रहा हूं। ओके, लेट्स स्टार्ट। फ्यूचर टेंस মানে ভবিষ্যৎকাল। আর আমি যেটা তোমাদের এইমাত্র বললাম, ফিউচারের যে চারটে ভাগ আমরা জানি, দ্য সিম্পল ফিউচার টেন্স, ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স, ফিউচার পারফেক্ট টেন্স, ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, এই চারটে ছাড়া আমরা কি কি ভাবে फ्यूचर टेंस बुझाते पारी सेटा আমি বোঝাবো। अभी अभी मैं आप लोगों से ये कहा कि फ्यूचर का जो चार भाग है, ये चार भाग के अलावा और जो चार है जो यूज करके हम लोग फ्यूचर टेंस समझते हैं या किसी को समझाते हैं, वही चारों मैं आपको आज समझाने जा रहा हूं। ओके, नंबर 1 देखो, बी गोइंग टू। बी गोइंग टू যখন আমরা বোঝাই এটা আমরা ফিউচার হিসাবে ব্যবহার করি। नंबर 2 बी अबाउट टू। नंबर 3 सिंपल प्रेजेंट टेंस। नंबर 4 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बुझा गया? तो ये चारों देखे भी हम लोग फ्यूचर समझाते हैं या फ्यूचर में बात करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं ये चारों थोड़ा डिटेल्स में। এই চারটে আমরা একটু ডিটেলসে দেখি যে কি বোঝাচ্ছে এই চারটে। দেখো, नंबर ए बी गोइंग टू বাংলায় হতে চলেছে। बी गोइंग टू के मतलब अभी ये होने जा रहा है, लेकिन ये थोड़ा और भी समझना पड़ेगा हम लोगों को। কিন্তু এটা দেখো আর একটু ভালো করে আমাদের বুঝতে হবে। It describes an action will take place at an unspecified time. এটা একটা কাজ বোঝাচ্ছে যেটা ভবিষ্যতে হবে, কোন একটা স্পেসিফাইড টাইমে না। বুঝা গেছে? সময়টাকে বলে দেওয়া হচ্ছে না। इसमें जो घटनाएं घटेंगे वो जो फ्यूचर में होगा उसके लिए कोई स्पेसिफाइड टाइम नहीं बोला गया है, ठीक है? तो we use the going to form be going to plus base of the verb when we have decided to do something before talking about it. কিছু বলার আগে আমরা যেটা স্থির করে ফেলি বা যেটা আমরা ডিসাইড করে ফেলি সেটা আমরা এই be going to তে ব্যবহার করি। আর সেখানে কি be going to plus base form of the verb মানে V1 টা আমরা ব্যবহার করি। हम लोग कुछ मतलब क्या करेंगे वो कहने से पहले जो हम लोग डिसाइड कर लेते हैं वही जब हम लोग बोलते हैं तो उसी समय हम लोग ये बी गोइंग टू यूज करते हैं, ठीक है? एग्जांपल नंबर 1, हैव यू डिसाइडेड व्हाट टू डू? তুমি কি স্থির করে ফেলেছো যে তুমি কি করবে? यस, आई एम गोइंग टू रिजाइन फ्रॉम द जॉब। হ্যাঁ, আমি আমার চাকরি থেকে रिजाइन করব। हैव यू डिसाइडेड व्हाट टू डू? आपने क्या डिसाइड कर चुके हैं कि आप क्या करेंगे? हाँ, मैंने कर चुका हूं, डिसाइड कर चुका हूं कि मेरा जो जॉब है, मेरा जो नौकरी है वहां से मैं रिजाइन करूंगा। मतलब ये हम लोग पहले करने से पहले हम लोग डिसाइड कर चुके हैं कि हम क्या करने चाह रहे हैं। বুঝা গেল? যে আমরা কাজটা যে করব সেই কাজটা করার আগে আমরা স্থির করে ফেলি যে আমরা কি করতে চলেছি, সেটা মানে বলার আগে আমরা স্থির করে ফেলি। বুঝা গেল? নাম্বার 2, why do you want to sell your motorbike? কেন তুমি তোমার मोटर बाइक बिक्री करते चाओ? क्यों आप आपका मोटर बाइक बेचना चाहते हैं? आई एम गोइंग टू बाई अ कार। আমি একটা গাড়ি কিনতে চলেছি, मैंने एक 4 व्हीलर या एक कार खरीदने जा रहा हूं। नंबर बी देखो, we also use the going to form to talk about what seems likely or certain when there is something in the present which tells us about the future. going to form আমরা ব্যবহার করতে পারি যখন আমরা যেটা নিশ্চিত সেই সম্বন্ধে যখন আমরা বোঝাই তখন আমরা এটা গোইং টু ফর্ম ব্যবহার করি। আর যেটা আমরা বর্তমানে দেখে বুঝতে পারি যেটা ভবিষ্যতে হতে চলেছে, हम लोग गोइंग टू फॉर्म यहाँ भी यूज करते हैं जहां हम लोग कुछ बात करते हैं कि फ्यूचर में जो होगा वो प्रेजेंट देख के, मतलब प्रेजेंट टेंस में देख के हम लोग को ये मालूम हो जाता है कि फ्यूचर में ये होने वाला है। एग्जाम्पल देखो, द बोट इज फुल ऑफ वाटर।
ইট ইজ গোয়িং টু সিঙ্ক, মানে নৌকাটা পুরো জল ভরে গেছে আর এটা এবার डूबते চলেছে। बोट में पानी पूरा भर्ती हो गया और ये देख के हम लोग को ये मालूम हो रहा है कि ये अभी डूबने जा रहा है। नंबर 2, लुक एट द क्लाउड्स, इट इज गोइंग टू रेन। হচ্ছে মেঘের দিকে তাকিয়ে দেখো বৃষ্টি হতে চলেছে, মানে সময় কোনো স্পেসিফিক বলা নেই, আনস্পেসিফাইড, কিন্তু এটা হতে চলেছে। হয়তো 2 মিনিট পরে হতে পারে, 5 मिनट পরে होते पारे। तो आसमान में देखो ये अभी बारिश होने वाला है, कोई स्पेसिफाइड टाइम नहीं है लेकिन ये होने वाला है। हम लोग को कभी कभी होता है ना कि हम लोग देखते हैं बरसात के मौसम में हम आसमान में जब देखते हैं पूरा काला मेघ छाए होते हैं इधर उधर, ठीक है, तो देख के हम लोग को ये मालूम होता है कि अभी कुछ टाइम में ये अभी बारिश होने वाला है, ठीक है। उसका मतलब कब शुरू होगा ये हम लोग को मालूम नहीं होता, लेकिन ये पता चलता कि ये अभी होने वाला है। नंबर C, the going to form may also express an action which is on the point of happening। মানে গোয়িং টু ফর্মটা এখানে আমরা ব্যবহার করি যখন যে কাজটা মানে আমরা যখন বলছি সেই মোমেন্টে এটা হতে চলেছে। নাম্বার 1, লেটস গেট ইনটু দ্য ট্রেন, ইটস গোয়িং টু লিভ। চলো আমরা ট্রেনে উঠে পড়ি বা ট্রেনে আমরা চড়ি, এটা এখন ছাড়তে চলেছে। हम लोग यहां भी यूज करते हैं कि जो एक्शन होता है एट द पॉइंट ऑफ हैपनिंग, वो जब हम लोग बोलते हैं तभी भी हम लोग गोइंग टू फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस क्या है, लेट्स गेट इनटू द ट्रेन, इट्स गोइंग टू लीव। चलो हम लोग ट्रेन में चढ़ जाते हैं, थोड़ी देर में ये छूटने वाली है, ठीक है। कोई टाइम नहीं बोला गया है लेकिन फिर भी ये हम लोग को मालूम होता है कि ये कुछ ही देर में छोड़ने वाली है। नंबर 2, लुक द क्रैकर इज गोइंग टू एक्सप्लोड। বলছে দেখো এই বাজিটা এখন ফাটতে চলেছে। तो हिंदी में क्या है ये, अभी देखो देखो ये जो क्रैकर है अभी ये फटने वाला है, मतलब कुछ ही देर में ये फट जाएंगे। 1 मिनट के बाद भी हो सकता है, 2 मिनट के बाद भी हो सकता है, ठीक है। उसका कोई स्पेसिफाइड टाइम नहीं मेंशन किया गया है। नंबर 2 देखो, बी अबाउट टू। बी अबाउट टू मानेও হতে চলেছে। তাহলে আমরা কি দেখলাম যে ইজ গোয়িং টু সেটাও বাংলাটা হতে চলেছে, আবার बी अबाउट टू সেটাও বাংলাটাও হতে চলেছে। हम लोग अभी देख रहे हैं कि इज गोइंग टू और बी अबाउट टू दोनों का मीनिंग मतलब जो होने जा रहा है, दोनों का मीनिंग मतलब सेम ही है, लेकिन इसमें छोटा सा एक डिफरेंस है। देखिए, इट डिस्क्राइब्स एन एक्शन विच विल टेक प्लेस वेरी सून और इमीडिएटली। यह बोल रहे हैं कि ये जो एक्शन होने वाला है बहुत जल्द होने वाला है। वहां लेकिन इज गोइंग टू में ये नहीं कहा गया था, लेकिन यह कह रहा है कि इट डिस्क्राइब्स एन एक्शन which will take place very soon, बहुत जल्द ये होने वाला है। তাহলে আমরা দেখছি যে বি অ্যাবাউট টু আর ইজ গোয়িং টুর মধ্যে পার্থক্যটা, যে বি অ্যাবাউট টু আমাদের কি বোঝাচ্ছে যে কোনো কাজ খুব তাড়াতাড়ি ঘটতে চলেছে বা খুব তাড়াতাড়ি হতে চলেছে। এখানে একটা সময়ের কথা বলছে যেটা আমাদের কি ইজ গোয়িং টু তে বলা হয়নি, ওকে। আর এখানে আমরা একই ফর্মটা ব্যবহার করতে পারি, বি অ্যাবাউট টু প্লাস বেস ফর্ম ক্যান অলসো বি ইউজড ফর দ্য ইমিডিয়েট ফিউচার। এখানে ফর্মটা এই থেকে যাচ্ছে, यहाँ भी फॉर्म बी अबाउट टू प्लस बेस फॉर्म मतलब V1 हम लोग यूज कर सकते हैं। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। लेट्स गेट इनटू द ट्रेन, इट्स अबाउट टू लीव। चलो हम लोग ट्रेन में चढ़ जाते हैं, ये अभी अभी छोड़ने वाला है, मतलब इसका मतलब यही समझा रहा है कि बहुत जल्द ये छूटने वाली है ये ट्रेन। तो এখানে বলছে लेट्स गेट इनटू द ट्रेन, इट्स अबाउट टू लीव, মানে চলো আমরা ট্রেনে উঠে পড়ি, ট্রেনটা খুব শীঘ্রই ছাড়তে চলেছে। মানে একটা সময়ের কথা বলছে যে খুব শীঘ্রই ছাড়তে চলেছে, যেটা ইজ গোয়িং টু তে আমাদের মানে তাড়াতাড়ি ছাড়তে চলেছে ঠিকই, কিন্তু সেরকম ভাবে বোঝায় না যে কতটা সময়, কিন্তু এখানে মেনশন করছে এটা, মানে এটা বোঝাচ্ছে এখানে যে খুব তাড়াতাড়ি এটা হতে চলেছে, ইমিডিয়েটলি বা ভেরি সুন। নাম্বার 2 এক্সাম্পল, ডোন্ট গো আউট নাও, উই আর অ্যাবাউট টু হ্যাভ লাঞ্চ। মা কখনো বাড়িতে বলেন না যে এখন বাইরে যাস না, আমরা এখনই লাঞ্চ করব, মানে এখনই বলতে হয়তো 1-2 মিনিটেই লাঞ্চটা রেডি হবে। তো এখানে যখনই আমরা এটা বলবো ইজ গোয়িং টু, এখানে আমরা বলবো না, তখন আমরা বলবো কি अबाउट टू। कभी कभी घर में मम्मी या डैडी बोलते हैं ना कि अभी बाहर मत जाओ, हम लोग लंच करेंगे, तो उसका मतलब जब मम्मी ये बोलते हैं कि वी आर अबाउट टू हैव लंच, तो इससे हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि लंच होने में ज्यादा देर नहीं है, ये बहुत जल्दी होगा, इमीडिएटली होगा। तो इमीडिएटली जब हम लोग मेंशन करते हैं कि ये फ्यूचर में होने वाला है, तब हम लोग क्या अबाउट टू यूज करेंगे, ठीक है। और जब कोई स्पेसिफाइड टाइम नहीं होगा तब हम लोग यूज करेंगे इज गोइंग टू। বুঝে গেল। নাম্বার 3 দেখো, সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স। কখনো কখনো আমরা সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স দিয়ে ফিউচার টেন্সটাকে বোঝাই।
ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस दियो कखनो कखनो আমরা फ्यूचर टेंस টাকে বোঝাই। कभी कभी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस देके भी हम लोग फ्यूचर टेंस समझाते हैं। तो ये कब यूज होता है? ऑफिशियल प्रोग्राम एंड टाइम टेबल। ऑफिशियल प्रोग्राम और टाइम টেবিলের ক্ষেত্রে আমরা এটা বর্তমান কাল দিয়ে ভবিষ্যৎ কাল বোঝাই। एग्जांपलটা দেখো, आवर स्कूल ओपेन्स অন 4th জানুয়ারি, কিন্তু আমরা आवर স্কুলটা কি, এটা থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, এখানে আমরা ওপেন্স বলছি, কিন্তু আমরা এখানে বোঝাচ্ছি যে 4 তারিখ আমাদের স্কুল খুলবে, উইল ওপেন বলছি না, আমরা বলছি आवर स्कूल ओपेन्स অন 4th জানুয়ারি। এটার মানেটাই এটা কিন্তু प्रेजेंट टेंस দিয়ে আমরা फ्यूचर বোঝাচ্ছি। तो ये देखिए हमारा स्कूल जो है आवर स्कूल, ये सिंपल प्रेजेंट में थर्ड पर्सन सिंगुलर है। यहाँ ओफेंस भी मैंने लिखा, लेकिन ये मैं समझा रहा हूं कि ये 4 तारीख को खुलेगा, फ्यूचर टेंस समझा रहा हूं सिंपल प्रेजेंट देके भी। नंबर 2 एग्जांपल, व्हेन डज द नेक्स्ट ट्रेन लीव फॉर ব্যান্ডেল, কখন ব্যান্ডেলের ট্রেনটা ছাড়বে, কিন্তু এখানে আমরা সিম্পল প্রেজেন্টে প্রশ্ন করি যে व्हेन ডাজ দিয়ে বা হাউ ডাজ, আর যখন আমরা কোয়েশ্চেন করি সিম্পল প্রেজেন্টে এটা ডাজ ইউজ করি, তখন আমাদের এই দেখো ভার্বটা কি দেখালো, V1 দিয়ে কিন্তু, ওকে। আর এটা ট্রেনের কথা বলা হয়েছে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার, কিন্তু কোয়েশ্চেনে যখন আমরা ডাজ লিখি তখন এখানে এস যোগ হয় না, কিন্তু এটা অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে কি হয়ে যায়, লিভস হয়ে যায়, LEVES। এটা তোমরা মাথায় রাখবে, একটা জিনিস বলে দিলাম যে কোয়েশ্চেন করার ক্ষেত্রে। তো এখানে বলছে যে ট্রেনটা কখন ছাড়বে ব্যান্ডেলে যাওয়ার, মানে ব্যান্ডেলে যাওয়ার ট্রেনটা কখন ছাড়বে। बैंडल जाने वाली ट्रेन कितने बजे छोड़ेगी या छूटेगी, ये प्रेजेंट टेंस में, लेकिन इसका मीनिंग जो है कि फ्यूचर में कब होने वाली है, कब छूटने वाली है, लेकिन हम लोग प्रेजेंट टेंस देकर भी ये समझ रहे हैं। बुझा गया? देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस है इफ अनलेस व्हेन एज सुन एज দিয়ে আমরা কিন্তু ভবিষ্যৎটা বোঝাই। अभी देखिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग इफ अनलेस व्हेन एज सुन एज ये देके भी हम लोग समझाते हैं फ्यूचर टेंस। नंबर 1 एग्जांपल, I won't go if it rains. Won't is contracted form of will not. So I won't go if it rains. তাহলে if মানে এটা যদি, यदि हम नहीं जाएंगे यदि बारिश होगा, ঠিক है। আমি বাইরে যাব না যদি বৃষ্টি হয়, তাহলে এই যদি কথাটা কি ভবিষ্যৎ বোঝাচ্ছে, ইফটা ভবিষ্যৎ বোঝাচ্ছে, যদিটা ভবিষ্যৎ বোঝাচ্ছে। এখানে আমি শ্যাল উইল কিছুই ইউজ করলাম না, इफ दिए भविष्य काल बुझालाम, या मैंने शैल विल कुछ यूज नहीं किया है, इफ लगा के मैंने बोल रहा हूं कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा अगर बारिश हो तो। বুঝে গেল? নাম্বার 2 एग्जांपल দেখো, आई विल नॉट प्ले विथ यू इफ यू कम लेट। এখানে আবার ইফ বসালাম যে আমি তোমার সাথে খেলবো না যদি তুমি দেরি করে আসো, यदि तुम देर करके आते हो तो मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। বুঝে গেল? নাম্বার 3, कैन आई हैव सम मिल्क बिफोर आई गो टू बेड। এই জায়গাটা একটু তোমরা বুঝে নাও ভালো করে, এখানে কিন্তু মে হবে না। আমি তোমাদের একটু বুঝিয়ে বলি এখানে মে কেন হবে না। যখন আমরা কারো কাছে কোনো পারমিশন নিই তখন আমরা কি বলি, আমরা স্কুলে কি করি, যখন আমাদের ওয়াশরুম যাওয়ার হয় তখন আমরা টিচারকে বলি যে मैम बस मे आई गो टू टॉयलेट, दैट मीन्स आई एम सीकिंग द परमिशन ऑफ आवर टीचर। बोझो भालो करे, सही तरीके से आप लोग समझिए कि क्लास में हम लोग जब वॉशरूम में जाते हैं तो हम लोग परमिशन लेते हैं टीचर लोग से कि मैम सर मे आई गो टू वॉशरूम और टॉयलेट, बट इन दिस केस यू आर नॉट टेकिंग एनीवन्स परमिशन। ये এটা তোমরা ভালো করে দেখো যে এখানে কিন্তু তোমরা কারোর কাছে পারমিশন নিচ্ছ না। সাপোজ তোমার মা প্রত্যেকদিন তোমাকে ঘুমাতে যাওয়ার আগে হয়তো 1 গ্লাস দুধ দেন, ঠিক আছে, 1 গ্লাস দুধ দেন, বা তোমার বাবাকে এক কাপ কফি দেন প্রত্যেকদিন। তো তুমি জানো যে মা প্রত্যেকদিন আমাকে দেয়, এটা আমি মায়ের কাছ থেকে পাই, তবু আমি মাকে বলছি। আমরা বলি না অনেক সময় আমরা এটা বলি যে কাউকে কোনো বন্ধুকে হয়তো পেন আমরা যখন স্কুলে নিয়ে যাই না বা ভুলে যাই, বলি যে কুড ইউ লেন্ড মি ইওর পেন প্লিজ। তো সেটা আমরা একটা পোলাইটলি বলছি, রাইট? বোঝার চেষ্টা করো, যখন আমরা কুডটাকে ব্যবহার করছি আমরা অনেক ভদ্রভাবে অনেক পোলাইটলি সেটা ব্যবহার করি। ঠিক একইভাবে যখন প্রেজেন্ট টেন্সে আমরা ব্যবহার করছি ক্যান দিয়ে, মানে এটা আমরা অনেক पोलाइटली बोलছি। जब हम लोग क्लास में पेन या इरेजर नहीं लेके जाते हैं तब हम दोस्त लोग से जब मांगते हैं तो हम लोग पोलाइटली कैसे बोलते हैं, कुड यू लेंड मी योर पेन प्लीज। तो वो यहाँ जो हम लोग बोल रहे हैं कि मम्मी से हम लोग कह रहे हैं कि कैन आई हैव सम मिल्क बिफोर आई गो टू बेड। हम लोग को मालूम है कि मम्मी हर रोज देती है, फिर भी हम पूछ रहे हैं, ठीक है, फिर भी पूछ रहे हैं कि मालूम है। दिस इज द मोस्ट पोलाइट वे ऑफ आस्किंग। ओके, नंबर 4, प्लीज कॉल मी एज सुन एज ही कम्स। এখানে দেখো বিফোর দিয়ে করলাম, এখানে as soon as he comes, তাহলে
ধরো তোমরা কোন একটা বন্ধুর বাড়ি গিয়ে দেখলে তোমার বন্ধু বাড়িতে নেই, সেই বন্ধুর মা বাড়িতে আছেন, তো তখন কি বলো তোমরা যে কাকিমা যখনই ও বাড়িতে আসবে সঙ্গে সঙ্গে আপনি আমাকে একটু फोन করবেন। कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग किसी दोस्त के घर जाते हैं, जाके देखते हैं कि दोस्त से मिलने जो आप जाते हैं तो दोस्त घर में नहीं रहते हैं, तब आप लोग क्या कहते हैं उनके मम्मी से आप लोग यही तो कहते हैं ना कि आंटी, जब भी वो किसी नाम देके समर या टीना या प्रोनम कोई भी होता है, कि जब वो घर में आएगी या आएगा आप तुरंत मेरे को कॉल करिए, ठीक है। तो एज सुन एज देके भी हम लोग फ्यूचर टेंस यूज कर रहे हैं या समझा रहे हैं, या कोई শ্যাল और উইল নেই লাগা रहे हैं। বোঝা গেল যে এজ সুন এজ দিয়ে আমরা ভবিষ্যৎকালটা বোঝাচ্ছি, সেখানে কোনো শ্যাল বা উইল আমরা লাগাচ্ছি না, ঠিক আছে। এবার 4 নম্বরটা দেখো, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। তোমরা জানো যে प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस কি, आप लोगों को मालूम है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है। अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं पढ़ा रहा हूं, यह है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर मैं बोलूंगा कि 1 घंटे से मैं पढ़ रहा हूं तो वो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि वहां समय बता रहा है। বোঝা গেল। We use the present continuous tense when we talk about something that we have planned to do in the future. এটা বোঝো যে যখন আমরা কোনো কিছু অলরেডি ডিসাইড করে ফেলি বা প্ল্যান করে ফেলি যে আমরা এটা ভবিষ্যতে করব, সেটা তখন আমরা এই যে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স দিয়ে ব্যবহার করি, মানে বোঝাই আমরা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স দিয়ে। এটা তোমরা ভালো করে জেনে নাও, ইন ফিউচার কখনো তোমরা এই ভুলটা করবে না যে তোমরা যেটা প্ল্যান করে ফেলো সেটা বলতে গেলে কখনো তুমি শ্যাল বা উইল এটা ব্যবহার করবে না, এটা প্रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस দিয়ে বোঝাবে ফিউচারটা। आप लोग गौर से सुनिए और समझ जाइए कि जब किसी भी काम आप लोग पहले प्लान कर चुके हैं तो वो जब आप बताएंगे कि फ्यूचर में आप वो करेंगे तो ये कभी श्याल और विल नहीं लगाएंगे, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस देके आप लोग ये लिखेंगे। तो एग्जांपल देखो, नंबर 1, आई एम गोइंग टू शिमला टुमोरो। এখানে আমরা টুমোরো বলছি মানে ভবিষ্যৎকাল, কিন্তু এখানে কি বলছি সেন্টেন্সটা, আই এম গোইং টু শিমলা টুমোরো, কালকে আমি শিমলায় যাচ্ছি, মানে তুমি প্ল্যান করে ফেলেছো যে তুমি কালকে শিমলায় যাবে। ইট হ্যাজ অলরেডি বিন planned by you that you are going to Shimla tomorrow. In that case don't use shall or will, simply say I am going to Shimla tomorrow, যে কালকে আমি शिमला যাচ্ছি। ये हम लोग कह रहे हैं कि मैं कल शिमला जा रहा हूं, कल बोल रहा हूं, लेकिन ये प्रेजेंट टेंस देके, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस देके मैं बोल रहा हूं, या shall और will कुछ यूज नहीं कर रहा हूं। तो इसका मतलब क्या समझ रहा है कि ये हम लोग प्लान कर चुके हैं कि हम लोग जा रहे हैं कल। जब हम लोग प्लान कर लेते हैं तभी हम लोग shall या will कभी यूज नहीं करते हैं, हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस देके समझाते हैं। এই সেন্টেন্সের জায়গায় এটা বললে আরো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে, इट विल साउंड मच बेटर देन दिस, दैट इज आई एम लिविंग फॉर शिमला टुमारो। अगर ये सेंटेंस के जगह ये सेंटेंस कहेंगे तो ये और भी एप्रोप्रिएट होगा, ठीक है। ये भी राइट, दिस वन इज राइट, दैट वन इज राइट, होता करेक्ट, बट बेटर यूज दिस सेंटेंस। नंबर 2 एग्जांपल, माय अंकल इज अराइविंग दिस इवनिंग। আমার আঙ্কেল আজকে সন্ধ্যায় আসছেন, উনি আসছেন, মানে এটা অলরেডি প্ল্যান্ড যে উনি একদম কনফার্ম আসছেন, সেজন্য আমরা प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस সেখানে ইউজ করলাম যে माय अंकल इज अराइविंग दिस इवनिंग। मेरा जो अंकल है, अंकल आ रहे हैं आज शाम को, तो ये प्री प्लान्ड है, मतलब प्लान कर चुके हैं अंकल क्या वो आ रहे हैं शाम को, तो इसीलिए हम लोग कोई शैल और विल बिना यूज करके हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस देके भी ये समझ रहे हैं कि माय अंकल इज अराइविंग दिस इवनिंग। ओके, তো আজ এই পর্যন্তই। আর আমার ভিডিওগুলো যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে একটি লাইক দিয়ে দিও, বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো এবং সাবস্ক্রাইব করো।